السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ علماء دیوبند کے تمام گستاخانہ کفریہ عبارت والی کتابیں میرے پاس عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر دستیاب ہیں۔ تمام حضرات سے گزارش ہے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کریں اور جس کو کتاب چاہیے وہ میرے نمبر پر رابطہ کرے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ جی السلام علیکم۔ ہاں بھائی، خیریت ہے؟ پہلے سلام دیا آپ کو، سلام کا جواب دیجیے کم سے کم پہلے۔ میں نے اس دن 10 منٹ آپ کو بتایا کہ ہم چندہ کیوں نہیں دیتے، سلام کیوں نہیں کرتے۔ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دیوبندی علماء نے جو کتاب میں لکھے ہیں اس وجہ سے ہم سلام نہیں کرتے۔ کوئی وجہ ہے نا، تو پہلے اس وجہ کو وہ پرابلم سے سالو کرنا ہوگا نا، جس وجہ سے ہم سلام نہیں کرتے، ہم چندہ نہیں دیتے۔ ورنہ ہم کو کیا تکلیف تھی؟ لوگوں کو ہم لوگوں کو کہہ دیتے 500 روپیہ چندہ دیں، 1000 روپیہ چندہ دیں۔ مسجد کا کام ہو رہا ہے، مدرسہ کا کام ہو رہا ہے، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ سب ہوتے ہوئے بھی ہم نے چندہ کیوں نہیں دیا؟ کہ دیوبندی علماء نے غلط کتاب لکھے ہیں جس میں اللہ رسول کی توہین کی ہے۔ آپ اس راستے میں ابھی چل رہے ہیں، تو ہم آپ کو کیسے سلام کریں اور کیسے آپ کا سلام کا جواب دیں؟ بتائیے۔ آپ کو ہو سکتا ہے آپ ناراض ہو گئے ہو، اس لیے آپ کو ذرا اور باتیں سمجھانا ہے، اس لیے میں نے آپ کو کال کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، ابھی ہم ذرا ٹرین میں ہیں۔ ہاں جی، آپ نے اتنا دن ہو گیا، 1 ہفتہ ہو گیا جناب، آپ نے کچھ باتیں تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ یہ مولوی صاحب جو ہم کو چندہ کرنے سے روکے ہیں، جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے؟ کتابوں میں کیا لکھا ہے، اصل کتاب کیا ہے؟ ذرا ڈھونڈ کے نکالتے یا دوبارہ مجھے کال کرتے۔ آپ نے مجھے کال بھی نہیں کیا اور تلاش بھی نہیں کیا، اور آپ مجھے صرف سلام کر رہے ہو۔ سلام تو کریں گے، سلام کا جواب بھی دیں گے، لیکن پہلا شرط یہ ہے ہمارے نبی کو جو سلام کریں، ہمارے نبی سے جو محبت کریں، ان کو ہی ہم سلام کرتے ہیں، کیونکہ ہم عاشق رسول ہیں۔ ہم عاشق رسول کو ہی سلام کرتے ہیں۔ جو ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کرے۔ کون نبی سے محبت نہیں کرتا ہے؟ آپ جب محبت کرتے ہوتے تو اشرف علی تھانوی اتنی غلط بات نبی کے بارے میں کیسے لکھے؟ بتائیے۔ نہیں، ہم یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں نبی سے محبت کون نہیں کرتا ہے؟ جو نبی کے شان میں گستاخی کرتا ہے وہ محبت نہیں کرتا، کیونکہ محبت کرنے والا گستاخی نہیں کرتا، محبت کرنے والا وفادار ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام اتنے وفادار تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کرتے تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرتا۔ نبی سے محبت یعنی کیا کیسے نہیں ہوا؟ نبی سے محبت کیسے نہیں ہوا؟ محبت کا علامت کیا ہوتا ہے؟ سنیے، آپ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں؟ آپ نے ابا سے محبت کرتے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں، کیا پوری امت کہتی ہے کہ نبی سے محبت ہے ہم کو؟ کہنے سے نہیں ہوتا نا، کہنے سے۔ اگر کہتے ہیں کہ نبی سے محبت، اب بھی کہتے ہیں کہ ہاں کہنے سے نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ بتائیے، علی سے اور حسین سے محبت کرنا غلط ہے کیا؟ وہ آل رسول ہے، رسول سے محبت ہے۔ ایک بات کا جواب، ایک بات کو سمجھانے کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ ایک بات کو، کیا خالی محبت کے حقدار خالی علی اور حسین ہے؟ میں وہ نہیں بول رہا ہوں، میں ایک بات آپ کی بات، جب خاص کیے محبت کو، آپ جب محبت کو خاص کیے تو کیا علی اور حسین ہی خالی محبت کے حقدار ہے؟ نہیں، وہ بات کی طرف میں نہیں جا رہا ہوں۔ علی بھی حقدار ہے، صحابہ اکرام بھی حقدار ہے، سارے اللہ سارے نبی حقدار ہے، لیکن میں آپ نہیں جا رہا ہوں بھائی۔ کیوں کریں آپ؟ نہیں، میں جو پوچھ رہا ہوں اس سے سنو۔ آپ کہہ رہے ہیں نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، پوری امت محبت کرتی ہے، آپ کا یہ کہنا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک سوال پوچھا کہ علی اور حسین سے محبت کرنا غلط ہے کیا؟ اچھا ہے نا؟ ہم کو آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کرو نا، کیوں آپ سمجھ نہیں رہے ہو؟ سنتا ہوں، آپ میں جواب دے رہا ہوں، سنیے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آل ہے، خاندان ہے، ہمیں سب سے محبت ہے، خالی علی اور حسین نہیں۔ ہاں سنیے، تو شیعہ لوگ محبت کرنے کی بات کرتے ہیں،
क्या उनको हम क्या उसका कहने से हम उनको सही मान जाएं? क्योंकि मोहब्बत करना तो सही है, लेकिन उनका कहना सिर्फ कहने से नहीं होता, वो मोहब्बत करते नहीं, सिर्फ मोहब्बत करने की बात करते हैं। इस वजह से हम शिया को गलत कहते हैं। शिया लोग मोहब्बत करने की बात करते हैं। अगर सच्चे में उन अली से मोहब्बत होती और हुसैन से उनको मोहब्बत होती तो हम भी शिया को सही मानते, लेकिन शिया लोग कहते हैं हम नबी से मोहब्बत, हम अली से मोहब्बत करते हैं, हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत करते नहीं, झूठे दावे हैं। इस वजह से हम उनको गलत कहते हैं। आप जो बोले अली और हुसैन, ये इनको शिया लोग मानते हैं एक मिसाल तौर पर, तो आप ये अली और हुसैन को ही खास क्यों किया? आप समझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं, थोड़ा अकल, थोड़ा दिमाग लगा के सोच के जरा समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ वो समझने की भी कोशिश नहीं कर रहे हो आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने जो कहा कि सारी उम्मत नबी से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करने के लिए कहते हैं शिया, तबलीगी जमात, देवबंदी सब नबी से मोहब्बत करते हैं, आपका कहना है। तो सिर्फ कहने से नहीं होता, मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत किसके अंदर है वो अलामत साबित होता है, उसका सबूत मिलता है। शिया लोग भी मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन मोहब्बत का सबूत नहीं मिलता, इस वजह से शिया को हम नहीं मानते। इसी तरह तबलीगी जमात, देवबंदी भी नबी से मोहब्बत करने का दावा तो करते हैं लेकिन मोहब्बत का सबूत उनके पास नहीं है, क्योंकि मोहब्बत का सबूत ये है, अगर आप माँ से मोहब्बत करते हो, माँ के खिलाफ कोई बोलेगा तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे। आपकी माँ को कोई गाली दे आप बर्दाश्त करोगे? नहीं करेंगे ना। आपकी माँ से मोहब्बत है इस वजह से नहीं करेंगे। तो नबी से मोहब्बत का दम भरते हैं, नबी के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें देवबंदी उलमा ने किताब में लिखा है, तो उसको कैसा बर्दाश्त करते हैं? हाँ, कहने से मोहब्बत नहीं होती ना, मोहब्बत का अलामत सबूत होता है मोहब्बत का। जैसा माँ के खिलाफ मैं बोल दूं, देखिए आपके माँ के खिलाफ बोल दूं तो आपको बर्दाश्त नहीं होगी। जो नबी की शान में गुस्ताखी करे, हाँ, जो नबी की शान में गुस्ताखी करे, हम उसको नहीं मानते हैं। हाँ, दूसरी बात ये है कि नबी की शान में जो कह के आपने कह दिया, जो कहकर आपने पूरी बात कह दिया, हुक्म लगाया, लेकिन नाम लेकर आप हुक्म नहीं लगाते। हम नाम कैसे क्या लगाएंगे? आप जो कहकर हम यही कर रहे हैं कि भाई नबी की शान में गुस्ताखी, चाहे हम हो या आप हो या कोई भी हो, वो मुसलमान ही नहीं रहता। हाँ, तो जो आपने तो जो बात कह दी, ये जो मसला है, नबी ने फरमाया। भाई आपका नाम क्या है? नाम भूल गया मैं। उस दिन आपने नाम बताया था लेकिन नाम भूल गया मैं। क्या नाम आपका? नबी ने फरमाया। आपका नाम क्या है? कि जो मेरे और मेरे सहाबा के चलेगा वही कामयाब होगा। हाँ, है कि नहीं? आपका नाम पहले बताइए ना जनाब, आपका नाम भूल गया मैं, नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल वाहिद है। अब्दुल वाहिद भाई सुनिए, नबी की मोहब्बत आपने कहा कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करे वो काफिर है। हाँ, ये बात हम इस बात को आखिर तक हम इसी बात को आगे ले चलते हैं, इसी टॉपिक पे, इसी मौजू पे बात करते हैं, समझे? अब दूसरे मौजू इधर उधर की बात नहीं। जो नबी के शान में थोड़ी भी गुस्ताखी करे वो काफिर है कि नहीं? हाँ, ये बात आपने खुद कहा। चलिए आप देखते हैं अशरफ अली थानवी साहब किताब में लिखे हैं हिफ्जुल ईमान में। हाँ, कुछ इबारत मैं जुबानी सुना देता हूँ। आपके ज़ाते मुक़द्दसा पर, आपके ज़ाते यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते मुक़द्दसा पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही है तो दरियाफ्त तलब अमर ये है कि इससे बाज़ उलूम गैबिया मुराद है या कुल। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर की ही क्या तफ्सीर। ऐसा इल्म गैब तो हर ज़ैद व अमर बल्कि सबी व मजनून बल्कि जमीओ हयावान व बहायम के लिए हासिल है। यानी ऐसा इल्म गैब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुक्म किया जा रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म माना जा रहा है, ऐसा इल्म तो पागल और जानवरों को, चार पैर जानवर, हयावान, बहायम, आयरे गैरे सब के लिए हासिल है।
ایسا علم غیب. تو آپ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا علم اگر پاگل اور جانور کو ہے کر کے بولا تو یہ نبی کے شان میں گستاخی ہے یا نہیں؟ ہاں، آپ کے نبی کو ہٹا کر وہی جگہ پہ اگر آپ کے بڑے آدمی کا نام لگا دوں کسی کا کہ جیسا علم اشرف علی تھانوی کا ہے ایسا علم تو پاگل اور جانور کو بھی ہے. ہاں تو گستاخی نہیں ہے. کتاب میں میں نے آپ کو میں نے نمبر دیا تھا اور کہا کہ واٹس ایپ پہ آپ نہیں کرنا. جو باتیں میں نے اس دن بتایا تھا ساری باتیں آپ کو آپ کے واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا. لیکن آپ نے واٹس ایپ بھی نہیں کیا، مجھے کال بھی نہیں کیا، اور آپ بولتے ہیں محبت کرتے ہیں. جب اللہ اور رسول کو محبت کیے ہوتے اس دن ساری باتیں آپ کو بتا دیا تھا کیا کیا دیوبندیوں نے کتاب میں لکھا ہے. ساری باتیں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا اور آپ اپنی کتابوں سے وہاں نکال کے دیکھ لیتے تھے. لیکن آپ کو دیکھنا بھی نہیں ہے، بس آپ دیوبندی بن کر دیوبندیوں کا شاید آپ دیوبندیوں کا کلمہ پڑھے، نبی کا کلمہ نہیں پڑھے. اگر نبی کا کلمہ پڑھے ہوتے تو نبی کی محبت سب سے زیادہ ہوتی. جب آپ کے ماں کے بارے میں کچھ بول دوں آپ برداشت نہیں کرو گے. نبی کے بارے میں اتنی ایسی باتیں لکھے ہیں، آپ کیسے برداشت کر رہے ہو؟ بولو. اس نبی کا کلمہ پڑھے ہو، قیامت کے دن جب آپ کی ماں آپ کو بھول جائے گی، باپ آپ کو بھول جائیں گے، آپ کے دوست رشتے دار بھائی سب بھول جائیں گے، لیکن نبی ربی حبی امتی جا کر آپ کے آقا جس آقا کا کلمہ پڑھے اس دن آقا کی سفارش کو آپ کو ضرورت ہوگی. آقا کی سفارش کی اس دن کوئی نہیں پہچانے گا لیکن نبی آپ کو پہچانیں گے. نبی کا کلمہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. ہاں تو میں اس کا معنی کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. جی عبدہ پہلا ہے نا. ہاں عبدہ و رسول. ہاں وہ رسول اس کے بندے اور رسول ہے. یہاں واو ہے، یہاں واو عاطفہ ہے تو اس کے بندے اور رسول ہے. تو ہم اسی طرح سے تو ہم حضور کو مانتے ہیں. جی آپ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ مان کر اگر اس کے بارے میں کوئی اگر کسی کو بولے، آپ سنو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ عبدہ و رسول. اس بارے میں یہاں پر کیا کہتے ہیں آپ؟ ہم یہ کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی اس کلمہ کو مانتے ہیں. اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے؟ نہیں، اختلاف جب نہیں ہے تو کیا علم غیب بندے کو ہے حاصل؟ تو علم غیب بندے کو حاصل نہیں ہے. ہاں نہیں ہے. آپ کا کہنا علم غیب بندے کو حاصل نہیں ہے. نہیں، کیا کہنا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے. نہیں، ہم وہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم یہ چیز کہہ رہے ہیں کیا بندے کو علم غیب حاصل ہے؟ بے شک بندے کو بھی حاصل ہے. ہاں بندے کو بھی حاصل ہے. تو اس کا آپ ثبوت دیں گے؟ ہاں ثبوت دے رہے تھے، آپ نے کٹ کر دیا فون. نہیں، میں کٹ نہیں کیا، اپنے خود کا آپ ہی کٹ کریں. نہیں ٹھیک ہے، آپ اتنا آپ جو بولے کہ ٹھیک ہے بندے کو علم غیب حاصل ہے. آپ مجھے یہ جملہ جس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اگر یہ جملہ اگر لکھا ہوا ہے کہ بندے کو علم غیب حاصل ہے تو ہم آپ کے بارے میں کریں گے. اچھا ثابت کر رہے ہیں، ثبوت دے رہے ہیں. بخاری شریف کتاب الصلاۃ، بخاری شریف کتاب الصلاۃ یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. آپ پہلے ایک بات آپ سے پوچھ رہا ہوں، دل کے حالات غائب ہے یا نہیں؟ آپ کے دل کے حالات جی آپ کے دل میں کیا ہے یہ میرے لیے غائب ہے یا نہیں؟ کیا بولے؟ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ اب میں آپ کے دل کے حالات کو اگر جان لوں تو یہ غائب ہے یا نہیں؟
तो उसको मुजज़ा बोलेंगे? तो गायब है या नहीं? मोजेजा हो या अलग हो, अलग मसला है, लेकिन दिल के गायब कहते किसे? मोजेजा जो है, दूसरे मोजेजा जो है आवाम के नजरों से जो गायब है उसको गायब कहते हैं। आवाम के नजर से जो गायब है उसको गायब कहते हैं। हाँ, गायब आपके दिल में क्या सोच, आपके दिल में सोच क्या है, ये मेरे नजर से गायब है, मेरे गायब है। हाँ गायब है ना। आप मान लिए दिल के हालात को जानने, दिल के हालात गायब है। हाँ, और खुशू और खुजू, खुशू किसे कहते हैं? दिल के हालात को खुशू कहते हैं। नमाज में जो हमारे हालात, खुशू के साथ नमाज पढ़ो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो खुशू के साथ नमाज पढ़ते हैं। तो खुशू गायब है, खुशू दिल के हालात को कहते हैं और गायब है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ किताब सलात में खुद दावा फरमा रहे मा फ़अलैया रुकूउकुम वला खुशूउकुम, मैं तुम्हारे रुकू को भी जानता हूँ, तुम्हारे खुशू को भी जानता हूँ। सारे सहाबा को फरमा रहे मैं तुम्हारे रुकू और तुम्हारे खुशू को जानता हूँ। यहाँ कौन कह रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे रुकू को भी जानता हूँ, तुम्हारे खुशू को भी जानता हूँ। अब खुशू गायब है या नहीं, बताइए आप। खुशू अलग चीज है भाई। खुशू अलग क्या चीज, कौन सी चीज है खुशू? कोई अलग नहीं है। कोई अगर बुजुर्ग बन गया, कोई अल्लाह के वली बन गया, और वो करामत से कुछ बता दे, तो क्या उसको आप गायब नहीं है? हाँ, वही तो आम आदमी जो गायब देखता नहीं, गायब जानता नहीं, अल्लाह के वली करामत से और नबी मोजेजात से वो गायब बता देते हैं, तो उसको गायब ही कहेंगे ना, गायब जानने वाला कहेंगे ना। तो वो क्या कहते हैं, वो बिल्कुल आप गायब कुल्ली तौर पर उसको तो गायब इल्म गायब दे कहेंगे। कुल्ली हम क्या कब कहेंगे? कुल्ली अल्लाह ताला के एतबार से अल्लाह ताला ने बात उलूम में गायब दिया। अल्लाह ताला ने अपने कुल गायब से, अल्लाह ताला ने अपने कुल गायब से बात उलूम में गायब दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। खुदा के एतबार से, खालिद के एतबार से बाज है, और मखलूकात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। अल्लाह ताला ने जिस चीज का इल्म उसको अता किया, अल्लाह ताला ने जिस चीज का इल्म हुजूर को अता किया, वही चीज बताए अपने साहब। तो गायब हो नहीं हुआ कोई। हम तो ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने जो नहीं दिया वो भी हुजूर को आता है, हमने तो ये नहीं कहा। हमने जितना माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ही ने दिया है। आप खुद कह रहे हो अल्लाह ही ने दिया, उसमें से कुछ शाहिद है, कुछ मुशाहिदा है और कुछ गायब है। अभी आप बोले कि बंदे को क्या कहते हैं, इल्म गायब है, अल्लाह का बंदा है, और हुजूर को इल्म गायब, अल्लाह का बंदा अल्लाह का बंदा है, और अल्लाह का बंदा होने से अल्लाह ताला ने हुजूर को खास बंदे होने की वजह से अल्लाह ताला ने गायब हुजूर को अता फरमाया है। अरे भाई, आप ये अभी बोले ना कि बंदे को इल्म गायब नहीं है। कौन बोले? हमने कहा, हमने तो नहीं कहा बंदे को इल्म गायब नहीं है। आपने खुद इकरार किया कि दिल के हालात को जानने वाला गायब होती, दिल के हालात गायब को कहते हैं, दिल के हालात को गायब कहते हैं। आपने खुद दावा किया, आपने खुद दावा किया दिल के हालात को गायब कहते हैं, और खुशू दिल के हालात का नाम है, दिल की कैफियत का नाम है खुशू। और हदीस में बुखारी शरीफ में मा अफ़ा अलैया रुकूउकुम वला खुशूउकुम, तुम्हारे रुकू भी छुपा हुआ नहीं है, खुशू भी छुपा हुआ नहीं है। अब रुकू को भी जानते हैं, खुशू को भी जानते हैं, यानी मुशाहिदा को भी जानते हैं, गायब को भी जानते हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक रुकू जो मुशाहिदा है और एक खुशू जो गायब है। आपके दावे के मुताबिक मैंने साबित किया दिल के हालात को जानने वाला गायब है। आप दूसरी बात साबित भाई, मेरे अंदर जो इल्म है मैं उसी को बोलूंगा ना। हाँ जी, मेरे कल क्या होने वाला है वो अल्लाह का मालूम है ना। तो अल्लाह के अलावा किसी और को मालूम नहीं है। नहीं है। माज़अल्लाह एक हदीस में और पेश कर रहा हूँ। कल क्या होगा, क्या
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाची जान बुखारी शरीफ में हजरत उम्मुल फजल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सुनिए आप बोल लीजिए आप पहले बोल लीजिए, मैं फिर यह हदीस पेश करूंगा। हेलो, हाँ बोलिए। क्या अल्लाह कल क्या होने वाला है ये इल्म किसको है? अल्लाह को है, और अल्लाह की अता से नबी को भी है। हाँ? अल्लाह को भी है और अल्लाह की अता से नबी को भी है। पांच चीजों का अभी हम ट्रेन में आवाज आपकी बराबर नहीं आ रही है। आ रही है, बोलिए। 5 चीजों के बारे में आप बोल रहे थे, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, अल्लाह ने कहा कि 5 चीजों का इल्म मुझे है, मेरे वो नहीं है, तो फिर हाँ, अगर 5 चीजें क्या क्या है? 5 चीजें क्या क्या है? आपकी आवाज नहीं आ रही थी, फिर से बोलिए। ट्रेन में हूँ, ट्रेन में अभी हूँ। कितने बजे आप फारिग होंगे बताइए? मैं गांव जा रहा हूँ अभी, गांव। फिर कब फोन करूँ आपको बताइए? कब फोन करूँ आपको? हेलो, चलिए ठीक है, आपसे मैं बाद में बात करूँगा। अभी जो अशरफ अली थानवी ने नबी के लिए इल्म गायब, नबी के लिए इनकार किया, और बाज़ उलूम गैबिया नबी को भी माना। हाँ, अभी आपकी आवाज़ कट के आ रही है, हेलो बोल के अभी ख़त्म करता हूँ, फिर आप जब फारिग होंगे। हेलो, देखिए भाई, हम जो है नबी को नबी मानते हैं और रसूल मानते हैं। रसूल मानते हैं, नहीं क्या मानते हैं वो तो हम नहीं जानते। आप क्या मानते हैं? नबी के लिए गायब का होना जरूरी है। नबी का मतलब ही है गायब बताने वाला, गायब की खबरें देने वाला, ठीक है। और अगर गायब नहीं मानते तो नबी को नबी मानना नहीं हुआ। हाँ, अभी जो 5 चीजें आपने बताया, 5 चीजें आपने बताया कि 5 चीजें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हाँ, तो कल क्या होने वाला है नबी नहीं जानता, नबी नहीं जानते ना, ये कि आपका कहना है क्या? मैं ये बोला, हाँ, किसी को अल्लाह ताला को मालूम है क्या कि कल क्या अल्लाह ताला ने, सुनिए, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कुरान में। अगर मालूम है आपके कहने के मुताबिक तो कुरान में है कि 5 चीजों, हाँ, 5 चीजों के बारे में अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। अल्लाह जिसको बताए उसको है। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह किसी को बताएगा ही नहीं। अल्लाह वो 5 चीजें गायब हैं, लेकिन अल्लाह जिसको बताएगा उसको हासिल हो जाएगा। आप कहते हैं कि अल्लाह किसी को बताएगा ही नहीं, लेकिन हम कहते हैं अल्लाह जिसको चाहे बताता है। वो 5 चीजें अल्लाह जिसको चाहे बताता है उसको इल्म गायब कहेंगे। 5 चीजें का इल्म गायब साबित हो गया, 5 चीजें इल्म गायब है, तो बताने के बाद भी गायब ही रहेगा ना। काम के नजदीक गायब है, अल्लाह के एतबार से गायब नहीं है। अल्लाह के नजदीक तो सब मुशाहिदा है। अल्लाह के नजदीक, हाँ, तो क्या उसको इल्म गायब कहेंगे? तो इल्म गायब क्या कहेंगे? फिर किसको कहेंगे? उसको इल्म गायब कहेंगे। इल्म गायब किसको कहेंगे? क्योंकि अल्लाह के नजदीक तो कोई चीज छुपा हुआ नहीं है। हर चीज काले पत्थर के नीचे काली ब्यूटी को भी अल्लाह देख रहा है, जान रहा है। तो अल्लाह का आलिमुल गायब होने का क्या मतलब? भाई अल्लाह के एतबार से गायब नहीं है, मखलूक के एतबार से गायब है। आपको इतना समझ आनी चाहिए, इतना समझ आपको आनी चाहिए। आपको इतना समझ आना चाहिए कि मैं तो वही चीज बोल रहा हूँ कि इल्म गायब अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है, नहीं है। अल्लाह जिसको चाहे उसको इल्म गायब देता है। तो क्या अल्लाह जिसको चाहे उसको इल्म गायब अल्लाह देता है। जैसा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सुनो, आपने खुद कहा कि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। जब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरूना फी बुयूतिकुम। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते तुम क्या खा के आए हो, क्या घर में रख के आए हो, सब मैं जानता हूँ, मैं बता देता हूँ। और ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं,
अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को इल्म दिया था कि लोगों के घर में क्या क्या है। अल्लाह ताला को तो भाई मालूम है हर चीज, वो तो अल्लाह जानती है हर चीज। मैं तो ईसा अलैहिस्सलाम कह रहा है, ये अल्लाह नहीं कह रहा है। हजरत ईसा व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरुना फी बुयूतिकुम व उबरिउल अकमह वल अबरस बिइज़नी। हाँ, ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नाबीना को रोशनी देंगे। आप रुकते भी नहीं, मैं जब बोलता हूँ ना, मैं बोलता हूँ आप सुनिए क्या क्या बोलते जाते हैं। मैं बोलता हूँ आप रुक जाए, रुकते नहीं। जब आप बोलते हो मैं खामोशी से सुनता हूँ, आप बीच में बात करने नहीं देते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद दावा कर रहे हैं कि मैं क्या तुम्हारे घर में क्या है, तुम क्या खा के आते हो, क्या रख के आते हो, सब मैं बता सकता हूँ। और आपने जो दूसरी चीजें बताए कल क्या होने वाला कोई नहीं जानता। एक हदीस मैं पेश कर रहा हूँ। हजरत उम्मुल फजल रजी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची जान हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया हजरत उम्मुल फजल रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाची जान आपके पेट में जो बच्चा है वो खुलाफा के बाप होंगे, खुलाफा के बाप होंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैदा होने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चाची जान को बशारत अता फरमाई, यह खुलाफा के बाप होंगे और इनके नस्ल से 400 साल खिलाफत रहेगी। 400 साल तक बादशाह पैदा होंगे इनके नस्लों से। 400 साल तक कितने बादशाह पैदा होंगे, कितने खुलाफा हुकूमत करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट के बच्चे को बता रहे हैं। आप जरा कल क्या होगा नहीं जानते हैं नबी। अबू जहल कहाँ मरेगा, अबू जहल कहाँ मरेगा, उतबा कहाँ मरेगा, साहिबा कहाँ मरेगा। बदर की लड़ाई से पहले अल्लाह के नबी निशानदेही करके जाते हैं कि यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ उतबा मरेगा, या वलीद बिन मुगीरा मरेगा, यहाँ कौन कहाँ मरेगा, सबकी निशानदेही करते हैं। और बदर की लड़ाई में सहाबा इकराम देखते हैं नबी का मौजूदा, जहाँ निशानदेही फरमाई वहीं मरे। कल कौन कहाँ मरेगा वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैं तुम्हारे खुशू को भी जानता हूँ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तक कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है सबको मैं पहचानता हूँ। क्या ये गायब नहीं है? हाँ, ये गायब नहीं है तो है क्या गायब? कौन सी चीज को कहते हैं? और दूसरी बात, आप गायब की मौजू पर लेके गए, अशरफ अली थानवी ने गुस्ताखी की, उसको छोड़कर आप उस टॉपिक पे बात करने के बजाय आप दूसरी तरफ लेके गए। हमारा कहना है कि नबी के इल्म को पागल और जानवर के बराबर कहकर अशरफ अली थानवी ने गुस्ताखी किया। हाँ, पागल और जानवर के इल्म से तजबी देकर और गायब की जानवर के लिए भी बाज़ उलूम गैबिया मान कर और उसमें नबी को शामिल कर अशरफ अली थानवी ने गुस्ताखी किया, और कासिम नानूतुबी ने भी गुस्ताखी किया, और खलील अहमद अम्बेटवी ने गुस्ताखी किया, रशीद अहमद गंगोही ने गुस्ताखी किया, और इस्माइल देहलवी ने। पांचों मौलवी गुस्ताखी की वजह से काफिर है। इल्म गायब तो आप भी मानते हो, नबी के लिए नहीं मानते, लेकिन अपने मौलवी के लिए मानते हो। बोलिए। बोलिए जनाब। हाँ हेलो। हाँ, अभी मैं ट्रेन में हूँ। हाँ, अभी बराबर बात नहीं हो रही है जी। हाँ, मैं इंशाल्लाह मदरसा पहुँच के मैं कॉल करूँगा, ठीक है? मैं थोड़ा गांव जा रहा हूँ काम से। गांव जाकर कॉल कीजिए मुझे, ठीक है? गांव जाकर भी कॉल कीजिए इंशाल्लाह, गांव में भी बात कीजिए और जल्द से जल्द तौबा कीजिए। मौत का कोई भरोसा नहीं है, बिना तौबा के आप मर जाएंगे तो आपको सीधा जहन्नम में जाना होगा, क्योंकि आप गुस्ताखों के साथ हैं, आप बातिल फिरके के साथ हैं, हक के साथ नहीं है। अगर आपका अकीदा है कि नबी गायब नहीं जानते और गायब का अकीदा नबी के लिए रखना शिर्क है, तो आप फिर मुशरिकों के पीछे नमाज क्यों पढ़ते हैं जानबूझकर? हाँ, तो इससे यह साबित होता है कि आप बातिल फिरके के साथ हो, आपका कौल और फिल में तजाद है, आप जो दिल से मानते हो उस पर अमल नहीं करते, आपका कौल अलग है अमल अलग है। इस वजह से आप खुद गुमराह साबित हो रहे हो। ठीक है जनाब?
आप खुद तौबा करो, सही रास्ते पर आ जाओ, देवबंदियत से तौबा करो, आपको इज्जत दुनिया में भी अल्लाह ताला इज्जत अता फरमाएगा, आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। वरना इसी देवबंदियों के साथ में रहकर दुनिया भी बर्बाद होगा, आखिरत भी बर्बाद होगा आपको। हाँ, खुद देवबंदी यहाँ बाज उलूम गैबिया अशरफ अली थानवी मखलूक के लिए मान रहा है, और आप कह रहे हैं कि नबी इल्म गैब सिर्फ नबी को है। बाज उलूम गैबिया तो मखलूक को भी हासिल है, अशरफ अली थानवी मान रहा है। अगर अल्लाह की सिफातें खासा है, अल्लाह की सिफातें खासा है तो बाज कैसे हासिल होगा? अल्लाह के खास सिफात में मखलूक थोड़ा भी शामिल नहीं हो सकता ना। खुदाई की खुदाई में मखलूक शामिल होगा क्या? तो कौन बोल रहा है कि मखलूक शामिल है? अशरफ अली थानवी खुद कह रहा है बात उलूम गैबिया में है, नबी की क्या खुसूसियत, इसमें तो जानवर को भी ऐसा इल्म तो जानवर को भी हासिल है, बात उलूम गैबिया। आप कह रहे हैं अल्लाह के सिवा किसी को भी हासिल नहीं है। यहाँ पर बात उलूम गैबिया अशरफ अली थानवी मखलूक के लिए मान रहा है, नबी को भी मान रहा है, मखलूक को भी मान रहा है, तो मुशरिक हुआ ना। अल्लाह के साथ में थोड़ा शरीक करे तो भी शिरक हुआ, ज्यादा शरीक करे तो भी शिरक हुआ। जैसा कि आपने फरमाया कि हुजूर को भी इल्म है कि अबू जहल यहाँ मरेगा, वहाँ उतबा मरेगा, यहाँ उमय्या बिन खल्फ मरेगा। हाँ जी। तो यहाँ पर जो हुजूर ने निशानदही कर दी जंग में, तो इसको अल्लाह ने बता दिया था, जैसे कि आप अभी फरमाया कि तो अल्लाह किसी को बता दिया। ये तो आपका ये जब अल्लाह ने बता दिया था जनाब, अल्लाह ने बता दिया था, आप कह रहे हैं 5 चीजें अल्लाह किसी को बताता ही नहीं। अल्लाह पहले तो आपने दावा किया 5 चीजें, 5 इल्म गैब अल्लाह किसी को बताता नहीं। तो यहाँ अल्लाह ने बताया, कहाँ बताया? कौन कहाँ मरेगा, अल्लाह किसी को बताता नहीं। हाँ, आपका ये दावा था पहले, तो आपने दावा से आप क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं बोला हूँ, सही बात बोला हूँ। तो ये बताओ, आप अल्लाह ने नबी को बता दिया, फिर तो यही तो हम कहते हैं नबी को अल्लाह बताता है, गायब हर किसी को नहीं बताता, सिर्फ नबी को बताता है अल्लाह। वो कहते हैं मौजज़ा, कि जो चीज जो है बता दे नबी ने आने वाली चीजों को, उसको क्या कहते हैं? मौजज़ा कहते हैं। अल्लाह ने उसको अता किया, वो बता दिए। तो मौजज़ा अकीदा नहीं बनेगा? हाँ, मौजज़ा अकीदा नहीं बनेगा। जैसा कि अगर इस दौर में कोई वली या कोई कुतुब अब्दाल या बुजुर्ग अगर कोई गैबी चीज को अगर बता दे, तो उसको तो इल्म गैब नहीं कहेंगे ना। तो भाई क्यों नहीं कहेंगे? इल्म गैब है, गायब इल्म गैब जब बता दिया, आप पहले मान लीजिए कि ये चीज गायब है। जब कहते हैं उसको इल्म गैब, मौजज़ा माना आपने। इस दौर का बुजुर्ग को लंबा बिला वजह बात को लंबा ना करे। आधी बात खत्म होने जा रहा है, आप बात को लंबा कर रहे हैं। आपने इस दौर के अकीदा होने की मनाफी होगी क्या? मौजज़ा अकीदा नहीं बन सकता। तो इस दौर के क्या कहते बुजुर्ग को अगर कुछ करामतें हासिल होती है, तो उसको भी इल्म करामत से भी गायब हासिल होता है। मौजज़ा के जरिए से, नबी मौजज़ा से और वली करामत से गायब की बात मालूम करते हैं अल्लाह ताला के इज़्न से, बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला की अता से नबी को और वली को गायब हासिल होता है, गायब की पोशीदा राज का इंतजाम होता है। उसको तो इल्म गैब नहीं कहेंगे ना। क्यों गायब नहीं कहेंगे? जब इल्म पहले मान लिया, गायब नहीं मान लिया, उसको गायब खत्म हो जाता है। नहीं, गायब नहीं, उसको इल्म गैब कहेंगे ना। इस तरह के धोखेबाजी करते हैं आप देवबंदी लोग। जब पहले मान लिया, क्या होने वाला, और जब वो चीज हासिल हो गया, आप उसको मानने से इनकार कर रहे हो। अरे भाई, मैं क्या माना हूँ? तो मैं क्या माना? जब नबी को आपने पहले क्या कहा, कल क्या होगा नबी नहीं जानते, आपने खुद दावा किया। आपने क्या माना, कल क्या होगा नबी नहीं जानते, आपने दावा किया। और मैंने साबित किया कि कल की बात तो दूर की, क़यामत तक हर वाक़या को अल्लाह के नबी जानते हैं और देखते हैं और पहचानते हैं। और नहीं, साल खिलाफत रहेगी, गलत बात है। कल क्या होने वाला है?
लेकिन जब नदी को हासिल हो गया आप नदी को गायब नहीं रहा, आप गायब नहीं रहा। आप कलमा पढ़ लीजिए। आप मैं क्यों कलमा पढ़ूं? आप कलमा पढ़ लीजिए। मैं अभी भी बोलता हूँ, कुफर नहीं है। अगर हम कुफर किए होते हमारे पीछे नमाज पढ़कर, इसीलिए तो आपको चंदा करने से हमने रोका, इसीलिए कि आप हमको मुशरिक मानते हो, कलमा पढ़ने कह रहे हो, आप हमको मुशरिक काफिर मानते हो, बिला वजह काफिर मुशरिक मानते हो और हमारे पीछे नमाज पढ़ते हो। आप जो हमारे पीछे नमाज पढ़ते हो, आप जो ये बात बोले नहीं, आप जो ये बात जो बोले, आप हमारे कह रहे हो हम गायब मानते हैं, नबी के लिए इल्म गायब मानते हैं, इसलिए हमको कलमा पढ़ने कह रहे हो और आप जो कुरान और हदीस के खिलाफ कर रहे हो। कुरान से मैंने साबित किया ईसा अलैहिस्सलाम भी गायब जानते थे। कुरान से मैंने साबित किया कि ईसा अलैहिस्सलाम भी गायब जानते थे। कुरान से मैंने साबित किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गायब जानते थे। और नबियों को अल्लाह ताला अता फरमाता है, खास खुसूसी अंबिया इकराम को अल्लाह ताला गायब अता फरमाता है, अंबिया को भी नबी के फजल से, नबी के सदक़े में औलिया को भी अता फरमाता है। ये हमारा अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक है। आप जो इनकार कर रहे हो, आप खुद एक जगह तो मान रहे हो, दूसरी जगह इनकार कर रहे हो, ये आपके दो गलापन मुनाफिकत है। आप बाज़ उलूम गैबिया नबी के लिए मान रहे हो और शैतान के लिए भी मान रहे हो और माज़अल्लाह रजील मखलूक के लिए भी मान रहे हो। तो पहले कलमा तो आपको पढ़ना चाहिए। आसफ अली थानवी मर गया, उसको पहले कब्र से उठाकर कलमा पढ़वाना चाहिए। हाँ, उसकी हड्डी को उठाकर कलमा पढ़ाइए, हमको कलमा ना पढ़ाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक है और हम रात दिन कलमा पढ़ते रहते हैं, ईमान की तजदीद हम करते रहते हैं। हाँ, हम भी जो कलमा पढ़ते रहते हैं, हम कुरान हदीस के तालीम पढ़ते रहते हैं, नबी के नबी को हम मानते हैं, अल्लाह के नबी को मानते हैं, हमारे नबी है, रसूल है। कितनी बार अपनी बातों से मुकरे आपने? कहाँ मुकरे? कहीं क्या होगा वो गायब नहीं, वो गायब है, लेकिन नबी को हासिल है तो आप गायब नहीं है। डबल किस तरह आप डबल स्टैंड लेते हो, किस तरह आप धोखा देते हो। आपने कहा कल क्या होगा उसको गायब कहते हैं, कल क्या होगा उसको गायब कहते हैं। फिर मैंने साबित किया कल क्या क्या होगा नबी ने बता दिया, तो आप कहते मोजेजा था। मैं पूछ रहा हूँ मोजेजा अकीदा नहीं बन सकता? तो क्या अकीदा होता ही नहीं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, मोजेजा अकीदा नहीं बन सकता क्या? भाई मोजेजा अकीदा कैसे बनेगा? नहीं बनेगा आपके नजदीक। आप इनका आप लंबी बात बहुत लंबी हो चुकी है, आप सिर्फ जवाब दो। अकीदा नहीं बन सकता, मोजेजा अकीदा नहीं बन सकता। आप क्या कहना चाहते हो? मोजेजा अकीदा नहीं बन सकता। मुजज़ा अकीदा मानते कि हुजूर को जो मुजज़ा मिला है, मुजज़ा अल्लाह की तरफ से दिया गया है, तो एक सिफात का इजहार हुआ ना मुजज़ा के जरिए से। नहीं, मुजज़ा जो है पहले सुनिए, मेरी बात सुनिए। मुजज़ा जो है नबी के साथ खास है। हाँ, तो अल्लाह ने उनका सिफात है। अल्लाह ने पहले कोई ना जाने, पहले सुनिए, पहले तो सुनते नहीं है, बोलिए। अल्लाह ने जो चीज हुजूर को बता दिया, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज जो है बताई, तो उसको जो है मुजज़ा कहेंगे। जैसे कि चांद के तरफ इशारा किए अल्लाह के नबी ने, तो यानी कि चांद दो टुकड़े हो गया। मगरिब असर की नमाज छोट हो रही थी अल्लाह के नबी की, तो अल्लाह के नबी ने उंगली से इशारा किया, तो सूरज जो है डूबने से रुक गया, तो उसको मुजज़ा कहेंगे। हाँ, कहेंगे ना। और अल्लाह के नबी सफर में थे, हजरत आयशा की हार गुम हो गई। अब हजारों वाकया बयान किया जा सकता है, लेकिन हजारों वाकया बयान करने का हजरत आयशा की हार गुम हो गई। यहाँ अगर अल्लाह के नबी को इल्म गैब हासिल होता, तो हजरत आयशा की हार जो है अल्लाह के नबी बताए थे कि तुम्हारे हार जो है उठने के नीचे हैं, लेकिन तमाम सहाबा को, तमाम साथियों को सारे वाकया का जवाब दिया जा चुका है। तमाम साथियों अगर मगर है,
इसका जवाब अगले वाक्य नहीं, बात पहले जो बात हो रही थी मोजेजा अकीदा नहीं बन सकता क्या, ये सवाल किया था। आप दूसरी तरफ जा रहे हो, मैं वही बोल रहा हूँ इसी टॉपिक पे। नहीं बन सकता। अरे भाई मोजेजा अकीदा नहीं बन सकता। मोजेजा के जरिया से अगर कल की बात बता दिया और हम मान रहे हैं कि मोजेजा के जरिया से ही हुजूर ने बता दिया, हुजूर कल की बात जानते थे और ये गायब जानना हुआ। जैसा आपने पहले दावा किया था कल की बात जानना गायब है, तो नबी ने कल की बात बता दिया तो गायब जानना हुआ। अगर मोजेजा से ही से बता दिया फिर भी नबी की सिफात है, नबी कल की बात जानते हैं, कल की बात जानते हैं। तो ये बात अगर हम मान रहे हैं तो नबी की हदीस से मान रहे हैं, कुरान की आयत से मान रहे हैं। आप अगर कहते हो मोजेजा अकीदा नहीं बन सकता, आपका ये दावा है मोजेजा। अरे भाई दावा इसको नहीं बोलते, मैं ये दावा कर रहे हैं अकीदा बन सकता है। मेरा एक ही टॉपिक है, मौजू खत्म। मेरा एक ही टॉपिक है, मोजेजा अकीदा बन सकता है या नहीं। आप हाँ या ना में जवाब दो, यानी आप अपना दावा ऐसे हम हाँ ना जवाब देंगे। हाँ बोलो, मोजेजा अकीदा बन सकता है। हमारा कहना है कि मोजेजा नबी के सिफात को अल्लाह जाहिर करता है। नबी की जो खास सिफातें, खास पावर जो अल्लाह की तरफ से हासिल है, उन पावर का इजहार करने को मोजेजा कहते हैं। हाँ, नबी के जो खास पावर, नबी आम इंसान नहीं होते ना, नबी अल्लाह के खास बंदे होते हैं। खास बंदे का जो पावर है, खुसूसी पावर है, जब खुसूसी पावर का इस्तेमाल करते हैं नबी, खुसूसी पावर का जब इस्तेमाल करते हैं उसको मोजेजा कहते हैं। आम बंदा जो नहीं कर सकता वो नबी करते हैं। पावर जो अल्लाह ताला अता नबी को जो खुसूसी पावर अल्लाह ताला ने दे रखा है, अल्लाह ताला ने नबी को जो खुसूसी पावर दे रखा है, वो पावर जब नबी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने एकदम दे रखा है और कुरान में ये साबित है कि अल्लाह ताला बार बार उससे उसके बारे में पूछता नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया हाजा अताउना, सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाया हाजा अताउना फमनुन औ अमसिक बिगैर हिसाब। ये नबी के जो मोजेजा होते हैं अल्लाह ताला अता करते हैं और जो चाहे जहाँ चाहे जैसा चाहे नबी इस्तेमाल करे और बगैर हिसाब। तो ये जो नबी की सिफात में दाखिल है, नबी मोजेजा अपने वक्त पर जब चाहे मोजेजा दिखाते हैं। तो अल्लाह ताला ने नबी को जो सिफात दिया है मोजेजा का, खास मकाम पर पावर दिखाना, वो पावर नबी दिखाते हैं, उससे भी अकीदा बनता है। और आप अगर कहते हो कि नबी मोजेजा दिखाते हैं तो अकीदा नहीं बनता, तो सबसे बड़ा मोजेजा क्या है जानते हैं? नबी के मैं कहाँ तक मैं इनकार किया हूँ क्या? आप फिर मान क्यों नहीं रहे? जैसा मैं मान रहा हूँ ऐसा मानो। फिर मैं तो कह रहा हूँ कि मोजेजा जो है मोजेजा भी आपका बन सकता है। मोजेजा नबी के साथ है। कल की बातें जो बताया, अबू जहल का मरने की बात बताया और ये सब मोजेजा है, मोजेजा भी अकीदा बन सकता है। बताओ, या फिर ना करो, इनकार कर। देखिए वही चीज तो मैं आपको नहीं बता रहा। मोजेजा मैं पूछ रहा हूँ इतनी देर से पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे हो। आपके पास जवाब नहीं है। मैं तो जवाब नहीं है, मतलब क्या हुआ? अपने अकीदा को गोलमोल कर रहे हो, वरना साफ बता दो। मोजेजा अकीदा बन सकता है, बता दो। मैं तो वही चीज आपको बोल रहा हूँ भाई कि मोजेजा बोलो ना, मोजेजा अकीदा बन सकता है। मोजेजा नबी के साथ खास है, तो वो खास नबी के लिए नबी के साथ नबी की सिफात हम नहीं हम उसको मानते हैं, नबी कल की बात बताते हैं। नबी कल की बात बताते हैं, ये तो अकीदा हुआ हमारा, मेरा मानते हैं। तो फिर ये अकीदा कल की बात बताते हैं। मेरा अकीदा है कि मोजेजा बात बताते हैं। मान लो, ये बात मान लो, कल की बात नबी बताते हैं। की बात हम नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे। आप क्या कहे, कल क्या होगा नबी को पता नहीं, आपने बोला। देखिए इतनी दुश्मनी है आपको नबी से। आपके मौलवी के बारे में लिखे हो, अब्दुल्ला राजपूत नाम का गंगोही का मुरीद था।
गंगोही का मुरीद था, वो कोई भी आता तो उसको बता देते थे तुम्हारे घर में लड़का होगा, लड़की होगा, लड़की होगी, बता देते थे अब्दुल्ला राजपूत। तो अब्दुल्ला राजपूत के बारे में आप लोग मानते हो और गंगोही का मुरीद था बोलकर मानते हो, वही बात नबी के लिए नहीं मानते। कितनी अफसोस की बात है, कितनी शर्म की बात है, नबी के मानने का आप लोग दावा करते हो और कल की बात नबी के लिए नहीं मान रहे हो। कल की बात हमारे नबी बताते हैं, हमारा अकीदा है, लेकिन आप नहीं मान रहे हो। लेकिन आप अब्दुल्ला राजपूत के बारे में मान रहे हो। अशरफ अली थानवी जब पैदा नहीं हुआ था, अशरफ अली की माँ गई थी, अशरफ अली थानवी की माँ गई थी। पहले सुनिए मेरी, आप सुनिए। हाँ, अल्लाह ने कुरान में जो जो फरमाया वो सारी बातों पर हमारा ईमान है, आपका नहीं है। आपका ईमान नहीं है। सुनिए, आप हाँ कहने से होगा क्या? आपके कहने कहा कर, तुम खुद कह रहे हो ना। देखिए, तुम खुद कह रहे हो, तुम पहले कहा कि कल की बात बताने वाला बताना गायब है, बाद में नबी के लिए कल की बात साबित किया तो आपने कहा कि वो साबित नहीं। पेट में क्या है, माँ के पेट में क्या है, औलाद है, बेटा है या लड़का है या लड़की है, ये आप बोले ना, नहीं जानता ना। ये तो अल्लाह के, अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाया, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअह व युनज़्ज़िलु ग़ैसा व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। हाँ, माँ के पेट में क्या है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन अब्दुल्ला राजपूत जानता है। सुनिए, अब्दुल्ला राजपूत जानता है माँ के पेट में क्या है। सुनिए, ये 5 चीजें है ना मौलाना। हाँ, ये 5 चीजें हैं, लेकिन ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। आपका दावा है। अब अल्लाह ने कह दिया, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह ने कह दिया। उसके साथ और भी बात अगर हो, आप लोग मानते, अल्लाह ने कह दिया आपका ईमान है, तो अब्दुल्ला राजपूत कैसा जानता है? सुनिए, पहले आपको आप बात लंबा करो, पहले जवाब आप बोले तो राजपूत लिखते हैं, अशरफ अली थानवी लिखता है, कोई राजपूत हो, अब्दुल्ला राजपूत या कोई राजपूत, हम जो करें सुनिए आप। तो अशरफ अली थानवी को नहीं मानते हो, फिर काफिर हो गया अशरफ अली थानवी। चलो ठीक है, सुनिए भाई, अशरफ अली थानवी काफिर हो गया ना। चलो, अब्दुल्ला राजपूत ने अगर अशरफ अली थानवी के कहने पर अब्दुल्ला राजपूत माँ के पेट में क्या है जानता है, तो अब ये लिखने की वजह से, इस बात को मानने की वजह से अशरफ अली थानवी साबित हो गया। आपका हमारा दिमाग कैसे खराब हो गया? अशरफ अली थानवी खुद लिखे हैं, अशरफ अली थानवी ने औलिया में अब्दुल्ला राजपूत नाम का कोई शख्स था, वो जानता था, कोई भी शख्स आता था उनको कह देते तुम्हारे घर में लड़का होगा और लड़की होगी, जो जैसा कह देता था वैसा ही होता था। तो अब ये साबित हुआ कि माँ के पेट में क्या है अब्दुल्ला राजपूत जानता है। और आपके जो अकीदा है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, इस अकीदा को आपने ठोकर मारा। लेकिन हम लोग ये दावा करते हैं अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह जिसको चाहे सलाहियत नहीं है सुनने के लिए। बोलिए, आपके अंदर सुनने की सलाहियत नहीं है, आप खाली बोलते जा रहे हैं। आप बोलिए भाई, आप जो हमको ये आयत पढ़ करके सुनाए, हाँ, ये 5 चीजें जो हम पढ़ करके सुनाए, हाँ, तो अगर इनके अलावा, अल्लाह के अलावा इन 5 चीजों का इल्म अगर दूसरों को होगा तो क्या उसको हम मानेंगे? क्या हम वो समझाए आपको? हमने सुनिए, अल्लाह ने कह दिया कि इन 5 चीजों का इल्म जो है मेरे सिवा किसी को नहीं है, हैं? हाँ, तो अल्लाह ने हमको कह दिया, हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है। हाँ, तो अगर इन 5 चीज, अगर इनके अलावा, अल्लाह के अलावा अगर कोई बता दिए, हैं, अगर कोई बताए तो क्या उसको हम मानेंगे? अल्लाह के अता से अगर बताए, अल्लाह के बताने से, अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं किसी को बताता नहीं, अल्लाह ने कहा कि मैं उसको मानेंगे। फिर मुकम्मल बात सुनो, 5 चीजों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है, लेकिन अल्लाह जिसको दे उसको है। अल्लाह नबी को देता है, मेरा कहना है अल्लाह नबी को देता है, बहुत सारी जगह से साबित हो रहा है। तो इसलिए 5 चीजों का इल्म नबी को हासिल है, लेकिन तुम्हारे नजदीक नबी को हासिल नहीं है। अभी ईशा की आजान हो रहा है। अरे भाई, पहले सुनो तो सही, पहले लाजवाब हुए, पहले मेरी काफी साबित करो और अब्दुल्ला राजपूत अशरफ अली क्योंकि कौन है आप हम नहीं जानते। पहले सुनो तो पहले मेरी बात। अशरफ अली थानवी तो जानते हो ना, ये बात अशरफ अली थानवी लिखते हैं
अभी अशरफ अली थानवी लिखते हैं तो अशरफ अली थानवी काफिर हुआ कि नहीं? गांगोही नाम उसको नहीं जानते हैं, गांगोही जानते हो? पहले सुनिए, अशरफ अली थानवी को भी जानते नहीं, गांगोही को भी जानते नहीं। चलिए आजान हो रहा है, आप इतने पे खत्म कर देते हैं, ये सब लोग सुनेंगे और फिर अगली बार आपसे और बात होगी, ठीक है? अभी हर चीज में आप जो है दोगला को इख्तियार किए हो, आपने खुद आप ही खुद कुरान की आयत और नबी के लिए साबित किया मैंने, चेक कर रहे हो, हर बात साबित हो गई, हर बात अगर साबित हो गई, आपका कुछ भी साबित हो गया। अल्लाह आपको हिदायत दे। बिल्कुल